السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ سامعین کرام، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن انتہائی خاص اور اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھاتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، یعنی فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد فی سبیل اللہ قال ولا الجهاد فی سبیل اللہ الا رجل خارج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ذی الحجہ کے 10 دنوں سے افضل کوئی عمل نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اس حال میں نکلا کہ اس نے اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈالا، پھر کچھ بھی ساتھ لے کر نہ پلٹا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں فرائض و نوافل اور نیک اعمال کا اجر و ثواب باقی ایام میں کی جانے والی عبادت سے افضل و برتر ہے۔ یہ رہی بات ان دنوں کی فضیلت کے تعلق سے۔ یہ معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں عبادات کی انجام دہی کو فضیلت یافتہ قرار دیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ روزہ عبادتوں میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے میں سے 9 دنوں کا روزہ رکھیں، تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے، مستحب ہے، مشروع ہے؟ اس کا جواب جب ہم احادیث کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جی ہاں، عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ مشروع ہے۔ حنیدہ بن خالد اپنی اہلیہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ازواج مطہرات میں سے کسی سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثۃ ایام من کل شہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے، یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھتے، نیز ہر ماہ 3 دن ایام بیض کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2437 2437۔ شیخ البانی نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ اس روایت کے الفاظ پر غور کریں، اس میں عدد کے لیے 30 مستعمل ہوا ہے، اور یہ 9 کے مجموعے پر دلالت کرتا ہے، یعنی 1 سے لے کر 9 تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نہ کہ صرف 9ویں تاریخ کا نہیں، بلکہ 9 دنوں کے مجموعے پر یہ 9 کا لفظ دلالت کرتا ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ قوم عاد پر عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلط رہا۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ قوم عاد پر عذاب صرف 7ویں رات اور 8ویں دن ہی مسلط رہا۔ اس طرح اس حدیث میں اگر یوم عرفہ یعنی 9ویں تاریخ میں ہی صرف روزہ رکھنا مقصود ہوتا تو اس کے لیے 9 مستعمل ہوا ہوتا، پھر اس سے 9ویں ذی الحجہ مراد لیا جاتا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں ذی الحجہ
ज़िलहिज्जा 9 ज़िलहिज्जा यानी ज़िलहिज्जा के इब्तदाई अशरे में से 9 दिनों का रोज़ा रखा करते थे। और अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में इन दिनों का रोज़ा रखता है तो गोया कि उसके लिए इन दिनों का रोज़ा रखना मुस्तहब होगा। अब सवाल पैदा होता है कि इस ताल्लुक़ से उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक हदीस मरवी है। वो कहती हैं मा रअयतु रसूलल्लाह साइमन फिल अश्र क़त्तु। सही मुस्लिम की रवायत है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशर ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखते हुए कभी नहीं देखा। इस हदीस के ताल्लुक़ से उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन इज़ाम ने यही कहा है कि इस हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने इल्म की नफ़ी की है। यानी उन्हें नहीं मालूम था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशर ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखा करते थे। और जिन्होंने ये बयान फरमाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशर ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखा करते थे, तो गोया कि उन्होंने अपने इल्म के हिसाब से बयान किया है। और हमें मालूम है कि अल-मुस्बित मुक़द्दमुन अला नाफ़ी, कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ को साबित करता है वो उस पर मुक़द्दम होगा जो उस चीज़ की नफ़ी करता है। बहरहाल ये रही बात उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के उस कौल का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशर ज़िलहिज्जा में रोज़ा नहीं रखा करते थे। अब हमें ये मालूम है कि अगर कोई शख्स अरफा के दिन का रोज़ा रखता है, यानी 9वीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखता है, तो उसके इस रोज़े की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 2 साल का गुनाह माफ़ फरमा देता है। और इस दिन का रोज़ा सिर्फ़ गैर हाजी रखेंगे। हाजी लोगों के लिए इस दिन का रोज़ा मशरू नहीं है, बल्कि गैर हाजियों के लिए है। यानी जो अरफा के मैदान में ना हो उसके लिए मशरू है कि अल्लाह चाहे रोज़ा रखे। अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के दिन के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया सियाम अरफा युकफ़िरु सनतल माज़िया व सनतल क़ाबिला। अरफा के दिन का रोज़ा पिछले साल और आइंदा साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये सही मुस्लिम की रवायत है। हदीस नंबर है 1162। तो गोया कि अब तक 3 बातें हुई। पहली बात यह है कि ज़िलहिज्जा के इब्तदाई 9 दिनों का रोज़ा मशरू है, मुस्तहब है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो इन दिनों के रोज़ा की ममानियत की है, उन्होंने अपने इल्म के हिसाब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न रोज़ा रखने की बात कही है। और इसी तरह से अरफा का दिन का रोज़ा मुस्तहब है। और अगर हम इस दिन के रोज़े का एहतमाम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन के रोज़े की वजह से हमारे 2 साल के गुनाहों को माफ़ कर देगा। चौथी बात यह है कि क्या हम ज़िलहिज्जा के 9 दिनों का रोज़ा जो मशरू है, इब्तदाई 9 दिनों का रोज़ा जो मशरू है, उनमें से कुछ दिनों का रोज़ा रख सकते हैं। यानी हम 9 दिनों का रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो क्या हम 2, 4, 5 दिनों का रोज़ा रख सकते हैं? तो इस ताल्लुक़ से उलमाए किराम ने कहा है, और जो बात ज़हन में समझ में आती है वो यही है कि अगर आप पूरे दिन का रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो आप कुछ दिनों का रोज़ा भी रख सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में इबादतें ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंजाम देनी है। अब अगर कोई शख्स 9 दिनों की इबादत 9 दिनों का रोज़ा नहीं रख सकता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि अब तुम एक दिन का भी रोज़ा मत रखो। इस वजह से कि मतलूब यह है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों को अंजाम दे। और ज़ाहिर सी बात है कि एक दिन का रोज़ा रखने वाला उस शख्स से बेहतर है जो एक दिन का भी रोज़ा नहीं रखता है। और जो एक शख्स एक दिन का भी रोज़ा रखता है वो उसका सवाब अल्लाह के यहाँ ज़रूर पाएगा। और इसको बिदअत कहना या ये कहना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 दिनों के रोज़े रखने की बात कही है, अगर कोई शख्स 2 दिनों का 3 दिनों का रोज़ा रख रहा है तो गोया कि वो बिदअत का मुर्तकिब हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। और इस तरह की बात करना ये दुरुस्त नहीं है। अब रही बात कि अगर कोई शख्स इब्तदाई 9 दिनों ज़िलहिज्जा के इब्तदाई 9 दिनों का रोज़ा रखता है तो उसे एक बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए
कि वो खुसूसी तौर पर सिर्फ शनिचर या जुमा के दिन का रोज़ा न रखे, क्योंकि इन दिनों की ममानियत वारिद हुई है। अहदीस में सिर्फ खुसूसी तौर पर इन दिनों का रोज़ा रखने के ताल्लुक़ से ममानियत वारिद हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसूमु यौम सब्ति इल्ला फ़ीमा फ़्तरदल्लाहु अलैकुम फ़इन लम यजिद अहदुकुम इल्ला लिहा अनबतिन औ ऊद शजरतिन फ़लयमज़ुक़हु। यानी तुम शनिचर के दिन का रोज़ा न रखो मगर उसमें से जो अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ किया है। फ़र्ज़ रोज़ों को रख सकते हैं। अगर नफली रोज़े हैं तो अगर तुम में से किसी को अंगूर की छाल या दरख्त की लकड़ी के अलावा और कुछ न मिले तो उसे ही चबा करके इस दिन का रोज़ा तोड़ दे। यह सुनन तिरमिज़ी की रवायत है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के ताल्लुक़ से बयान फरमाया है कि ला यसुमन्ना अहदुकुम यौमल जुमुअति इल्ला यौमन क़ब्लहु औ बअदहु। इसी तरह से अबू हुरैरा की एक दूसरी हदीस में है कि ला तख्तस्सु लैलतल जुमा बिक़ियामिन मिन बैनिल लयाली वला तख़ुस्सु यौमल जुमुअति बिसियामिन मिन बैनिल अय्याम इल्ला अन यकूना फ़ी सौमिन यसुमुहु अहदुकुम। गोया कि आप ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 9 दिनों का रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो और उनमें से चाहें कि सिर्फ जुमा का या शनिचर का रोज़ा रख लें तो ऐसा करना आपके लिए ममनू है। लेकिन दूसरे अय्याम में आप चाहें सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का रोज़ा रखना तो आप ऐसा कर सकते हैं। मज़ीद एक बात यहाँ याद रखने की है कि बहुत सारी हदीसों में ये बात मौजूद है कि अगर कोई शख्स ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों का रोज़ा रखता है तो उसे इतना और इतना सवाब हासिल होता है। जैसा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मन सामल अश्र फ़लहु बिकुल्लि यौमिन सौम शहर वलहु बिकुल्लि यौमि तरविया सना वलहु बिकुल्लि सौम यौम अरफा सनतान। जिसने अशर ज़िलहिज्जा के रोज़े रखे उसे उसके लिए हर दिन के अवध 1 महीने के रोज़े, यौम तरबिया के बदले 1 साल के रोज़े और यौम अरफा के बदले 2 साल के रोज़ों का सवाब हासिल होगा। यह हदीस मौज़ू है। इसमें एक रावी सुलेमान तैमी है जो कि मौज़ू और कज़्ज़ाब हैं। इसी तरह से एक रवायत है मामिन अय्याम अहब इलल्लाहि अन युतअब्बद लहु फ़ीहा मिन अश्र ज़िलहिज्जा बिअदल सियाम कुल्ल यौम मिनहा बिसियाम सना व क़ियाम कुल्ल लैलतिन मिनहा बिक़ियाम लैलतिल क़द्र। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अशर ज़िलहिज्जा से बढ़कर कोई ऐसे अय्याम नहीं जिनमें इबादत अल्लाह को ज़्यादा महबूब हो। उनमें हर दिन का रोज़ा साल के रोज़ों के बराबर और उनमें से हर रात के क़याम का सवाब लैलतुल क़द्र के क़याम के बराबर है। ये रवायत भी ज़ईफ़ है। इसकी सनद में मसूद इब्न वासिल और नहास इब्न क़ुहम ज़ईफ़ रवात हैं। इसके अलावा भी मज़ीद ऐसी रवायतें हैं जिनमें अशर ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 9 दिनों के रोज़े की मुख्तलिफ़ फ़जीलतें बयान की गई हैं। ये इन दिनों के रोज़ा रखना फ़ी नफ़्सिही मशरू है, लेकिन उसके ताल्लुक़ से कोई मख़सूस फ़जीलत नहीं साबित है। इस वजह से ये रवायतें साबित नहीं हैं और इनकी सनदों में इल्लतें मौजूद हैं। जो इस ऑडियो में बयान किया गया है उसका ख़ुलासा यह है कि अगर कोई शख्स ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई अशरे में से 9 दिनों का रोज़ा रखता है तो उसके लिए मशरू है, मुस्तहब है। यौम अरफा का रोज़ा रखना इंसान के 2 सालों के गुनाह को माफ़ कर देता है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई अशरे का रोज़ा नहीं रखा करते थे तो उन्होंने अपने इल्म की नफ़ी की है। अगर कोई शख्स अशरे ज़िलहिज्जा में से कुछ दिनों का रोज़ा रखना चाहे, पूरे 9 दिनों के रोज़े का एहतमाम नहीं करता है तो ऐसा करना उसके लिए जायज़ है। और अशरे ज़िलहिज्जा के रोज़ों के ताल्लुक़ से कोई मख़सूस फ़जीलत साबित नहीं है।